Hello dear students, I am Ankit Sultania. Today in this video I am going to explain you all about the new point as you can see on the screen, that is advantages of database. Before starting this point I would like to recall you regarding the previous video. In the previous video I have already discussed you all about database, DBMS and database concepts. What is database? A database is a collection of interrelated data. Interrelated data means data which are related to each other. Now, what is DBMS? DBMS stands for Database Management System. It is a software package that we use to create and maintain the database. DBMS क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया जिसका हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे उस डेटा को हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकें. टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उसको अपडेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें. इन सभी काम को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम लोग, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड DBMS. फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर जिसके एग्जाम्पल हो गए MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, Oracle, Fox Pro, SQL, MySQL, etc. As we use DBMS for creation and maintenance of database, there must be some advantages because of which we use DBMS or database. Some of the advantages because of which we use database are, as you can see on the screen. First one is data redundancy. Data redundancy means duplication of data, and database reduces the data redundancy. DBMS में क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, एक से ज़्यादा डेटाबेस क्रिएट करते हैं और एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल में बहुत सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करके रखेंगे. तो कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम फाइल हम लोग क्रिएट करने का कई बार चांस ऐसा बन जाता है. तो अगर हम डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हम लोग लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी. लेकिन DBMS का जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करता है. अगर हम डुप्लीकेशन ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो डेटा हमने टेबल में स्टोर कर रखा है एग्जैक्टली सेम डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करने में हेल्प करता है हमारा DBMS का सॉफ्टवेयर. मतलब जो डेटा हम एक बार इंटर कर चुके हैं, सेम डेटा अगर दोबारा इंटर करेंगे तो उसको स्टोर करने नहीं देगा, हम लोगों को मैसेज प्रोवाइड करेगा. दिस इज प्रिवेंटेड इन अ डेटाबेस एज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस और एनी चेंज इन इट is reflected immediately. Because of this, there is no chance of encountering duplicate data. Now, the next one advantage is sharing data. Sharing of data means, as you already know, that many different organizations use databases to maintain and update their large amount of data. Just take an example. If we are using railways website and we are going to get information regarding any particular train, regarding the details of the train which runs between source and destination station, fare of the train, ticket availability, and many more, we can access all this data. How? It means the data of railways is being shared with us. Take another example. There is an account in bank and we can access the data regarding our bank balance, mini statement and many more.
as an authenticated user, we can access it. It means bank is sharing the details related to us. So, in a database, the users of the database can share the data among themselves. Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. Now, the next one advantage is data integrity. Integrity means honesty. And as we used to create a table in a database, at the time of creation of the table, we have to specify name of the table, name of different fields, and the type of data that will be entered in a particular table. And we can also set different restrictions at the time of creation of the table. And as we created the table, after creation of the table, we have to enter the data according to set condition. It means that data is accurate and consistent in the database. If we are using multiple databases in DVMS, all the database contain data that is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database for all the users. Next one advantage is data security. This is also an important concept in database, as large amount of data is stored in a database, and only authorized user who has access, who has authentication to access that particular database, they can only make changes in the database. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग मान लो कि बैंक का ही डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो बैंक के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग उससे क्या सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्योंकि हम अपने अकाउंट के डिटेल्स को देखने के लिए ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेट यूज़र है, ऑथराइज्ड यूज़र है। फिर हम किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्या बैलेंस है वो हम नहीं देख सकते, या बैंक के डेटाबेस में हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि हम ऑथराइज्ड यूज़र नहीं है। लेकिन जो उस डेटाबेस को मेंटेन करते हैं वो उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर है, कोई भी अनऑथेंटिकेट यूज़र या अनऑथराइज्ड यूज़र जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जो ऑथराइज्ड यूज़र है बस उसी को एक्सेस करने का परमिशन है, अदरवाइज नो वन कैन एक्सेस दैट डेटा। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल का या कोई बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जो आता है हम लोग सिर्फ एक्सेस कर पा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट किसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमारा प्रोवाइड होता है डेटाबेस के थ्रू, तो हम लोग बस अपने डेटाबेस के अपना जो रिजल्ट है उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। दूसरे का रिजल्ट भी हमको एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन हम उसको उसके डेटाबेस में कुछ भी चेंजिंग लाना चाहते हैं तो हम नहीं ला सकते हैं। इट मीन्स डेटा इज सिक्योर इन अ डेटाबेस, नो वन कैन change it or modify it other than authorized user. Next one advantage is privacy. This is also one of the most important advantage. The privacy rule in database states that only the authorized user can access the database according to its privacy constraints. जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जैसे सपोज दैट मान लो कि हम लोग खुद का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं फेसबुक पर या इंस्टा पर, और उसको एक्सेस करने का बस राइट हमारे खुद के पास है, क्योंकि हम उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो दूसरा कोई हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जो डाटाबेस है ना वो भी एकदम प्राइवेसी रूल को फॉलो करता है कि
अगर हम लोग डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर्ड है उसको जो एक्सेस कर रहे हैं तो बस उसको हम लोग देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो वो भी कितना व्यू कर सकते हैं, जो डीबीए जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उन्होंने जितना अलाउ कर रखा है कि इतना ही डेटा हम बस एक्सेस कर सकते हैं, तो वही डेटा बस हम एक्सेस कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसको व्यू कर पाएंगे। उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं ला पाएंगे। तो ये भी एक प्राइवेसी के लेवल को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि डाटाबेस के अंदर जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है, इसमें प्राइवेसी रूल भी जो है फॉलो होता है। मीन्स जो ऑथराइज यूज़र हैं बस उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जो प्राइवेसी कंस्ट्रेंट सेटिंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो हम लोगों को परमिशन दे सकते हैं एक्सेस करने का, अकॉर्डिंग टू आवर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वन एडवांटेज इज बैकअप एंड रिकवरी। ये भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि डेटाबेस जो है ऑटोमेटिकली जो है बैकअप और रिकवरी जो है इसका ध्यान रखता है। ठीक है, और हम लोगों को जो है ना टाइम टू टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमको बैकअप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डीबीएमएस जो है हमारा ये ऑलरेडी बैकअप लेते रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डेटाबेस को ऑटोमेटिकली जो है रीस्टोर करते रहता है। अगर कभी भी चांसेज आए कि सिस्टम फेल्योर या क्रैश होने का, तो उससे उस टाइम भी हम लोगों को ऑलरेडी ये बैकअप लेके रखता है, जिससे कि हम लोगों को इस चांस आने में भी जो है हम लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वन एंड लास्ट एडवांटेज इज डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है? मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा, इसको हम बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। और डेटाबेस में डाटा कंसिस्टेंसी जो है ये भी एकदम इंश्योर्ड रहता है, जिससे कि डाटा रिडंडेंसी ना हो। अगर एक्चुअली क्या होता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर सेम टाइप ऑफ डेटा से रिलेटेड हम टेबल पहले ही बना चुके हैं, और अगेन इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट a table in a database using same data elements, then it avoids database avoids। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी को जो है ना ये अवॉइड करता है, मतलब जो भी डेटा होगा वो एकदम कंसिस्टेंट होगा, एक्यूरेट होगा। अगर मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा से रिलेटेड हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करता है। ऑल डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस एंड मस्ट बी सेम फॉर ऑल द यूजर्स व्यूइंग द डेटाबेस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।